Hello students, I hope you all are fit and fine with good condition of health. Today in this video I'm gonna explain part 2 of A Pact with the Sun, chapter 8 of the supplementary reader for class 6. If you didn't watch the first part, the link is given in the description for you. So let's get started. So happened that the sky remained overcast next morning. ऐसा हुआ कि अगली सुबह आसमान में बदली हो गई. The same was the case the following day. दूसरे दिन भी बदली रही. सईदा's mother was dejected. सईदा की माँ उदास और दुखी हो गई. She muttered, वो बोली, Oh Lord of mine, Oh my God, why have you ordered the sun to remain hidden? आपने सूरज को छुपने का ऑर्डर क्यों दे दिया है? How will I ever be cured? मैं अच्छी कैसे होंगी? सईदा was playing with her doll nearby. सईदा अपनी गुड़िया के साथ पास ही में खेल रही थी. And she heard her mother's lament but kept calm. और उसने अपनी माँ की दुख भरी बातों को सुन लिया लेकिन खामोश रही. Later in the afternoon, बाद को दोपहर में, when she stumbled on a spot of pale sunshine in the courtyard, जब उसने आंगन के अंदर हल्की सी धूप देखी, she ran to her mother's to say the sun was there. वो अपनी माँ के पास कहने के लिए दौड़ी कि धूप निकल आई है. No, no, said everybody present. हर आदमी ने कह दिया नहीं नहीं नहीं. It's too late and chilly. अब बहुत देर हो गई है और ठंड लग रही है. Your mother can't sit out there. तुम्हारी माँ वहाँ नहीं बैठ सकती है. Disheartened सईदा returned to her doll. दुखी होकर के सईदा अपनी गुड़िया के पास लौट गई. There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. सच में कोई धूप नहीं थी, सिर्फ धूप की आखिरी बची खुची किरणें थीं जो घर वाले आम के पेड़ की डालियों के ऊपर रह गई थीं. Now children have their command at a secret language. बच्चों की एक सीक्रेट और गुप्त लैंग्वेज होती है. Foreign to grown-ups altogether, जो बड़ों के लिए बिल्कुल अजनबी होती है. In which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun and the moon, perhaps even with the Almighty. जिस लैंग्वेज में वो पेड़ों, फूलों, जानवरों, सूरज और चाँद, शायद गॉड से भी, अल्लाह से भी बड़ी तेज़ी से बात करते हैं. यूजिंग दैट स्पेशल लैंग्वेज, वही स्पेशल लैंग्वेज यूज़ करके सईदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रे ऑफ द सन. सईदा ने भी सूरज की आखिरी जाने वाली किरणों से बात की. Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. उसने कहा, प्यारी बहन, कल ढेर सारी रोशनी और गर्मी लेकर के ज़रूर आना. You see, my mother is ill and needs your help. तुम देख रही हो ना, मेरी माँ बीमार है और उसे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है. Surely, answered the light. सूरज की रोशनी ने कहा, ज़रूर. Don't look unhappy. दुखी मत हो. We will be here at the fixed hour. हम यहाँ सही टाइम पर आ जाएंगे. Next day, early in the morning, when the sprightly sun rays embellished themselves for their journey down to earth. अगले दिन सुबह सुबह जब सूरज की मगन किरणें ज़मीन पर जाने के लिए तैयार हुई, रेडी हुई, The sun said, It's our day off again. सूरज ने कहा, आज फिर हमारी छुट्टी है. We are staying here. हम यहीं रुक रहे हैं, ज़मीन पर नहीं जाएंगे. The road to earth is blocked by an army of thick, murky clouds. मोटे गंदे बादलों की एक फौज ने ज़मीन के रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, रोक लिया है. The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. सूरज की छोटी छोटी किरणें चमकने के खातिर नीचे जाना चाहती थीं, लेकिन खामोश रहीं.
One of them, though, who had made a pact with little Saida, said, "Sir, I can't stay back." फिर भी उनमें से एक ने, जिसने छोटी सईदा के साथ वादा किया था, कहा, सर हम दोबारा नहीं रुक सकते हैं। I've given my word to Saida, whose mother is ill and needs our help. मैंने सईदा से वादा किया है जिसकी माँ बीमार है और उसे हमारी हेल्प की ज़रूरत है। I'll pierce through the clouds to reach Saida's courtyard. मैं सईदा के आंगन में पहुंचने के लिए बादलों को फाड़ दूंगी। How else will her mother be cured? वरना तो उसकी माँ कैसे अच्छी होगी। Hearing this, ये सुन करके, all the rest nearly staged the revolt against their father the sun. ये सुन करके सब किरणों ने लगभग अपने फादर सूरज के विरोध बगावत कर दी। फैंसी स्टेइंग बैक अगेन, दोबारा रुकने की चाहत के बावजूद, दे सेड इन अ सिंगल वॉइस, उन सब ने एक आवाज में होकर कहा, व्हाट विल द पीपल ऑफ द अर्थ से अबाउट अस? जमीन के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? दैट वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्न्ड लायर्स, कि हम आसमान वाले भी झूठे हो गए हैं। The sun relented. Please yourself, he said. सूरज नर्म पड़ गया, उसने कहा खुश हो जाओ। Mind your clothes though, लेकिन अपने कपड़ों का ख्याल करना। The clouds are murky, बादल बहुत गंदे हैं। Never mind our clothes, हमारे कपड़ों के बारे में मत सोचिए। We can always change, हम हमेशा चेंज कर सकते हैं। But go we must, लेकिन जाना ज़रूर है। And the rays rushed towards the earth, और सूरज की किरणें ज़मीन की तरफ दौड़ी। The clouds stood guard between them and Saida's courtyard, बादलों ने सूरज की किरणों और सईदा के आंगन के बीच में गार्ड खड़ा कर रखा था। The little rays focused their heat and they had enough of it on a battalion of clouds. छोटी छोटी किरणों ने बादल की फौज के ऊपर पूरी फोकस के साथ, तेजी के साथ हीट मारी। Which had to flee from its post, आखिर में उसे अपनी जगह से भागना पड़ा। The rays got through, shooting past the bewildered clouds, क्योंकि सूरज की किरणें बौखलाए हुए बादलों के बीच से शूट करते हुए निकल गई थी। They were already late, इसलिए कि उन्हें ऑलरेडी देर हो रही थी। She is fully recovered now, but she still follows the doctor's advice. वो अब बिल्कुल अच्छी हो गई है, लेकिन अभी भी डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करती है, मानती है। रोजाना फेफड़ा भरकर ताज़ा हवा लेती है और 1 घंटा तक धूप में बैठती है। Okay students, so this was the explanation of part 2 of A Pact with the Sun, chapter 8 of the supplementary reader for class 6. I hope you got it, enjoyed it, keep it up, the goal is ahead of you.